Good morning to all. In the last class, we have studied about the topic business risk. What are the nature and the causes of the business risk? Now we are going to start a new topic and the last topic of the first chapter, that is starting a business. Before starting a business, what are the different factors which we have to see and which we have to take more seriously before starting a business? Starting a business enterprise is similar to any other human effort in which resources are employed to achieve certain objective. Simply, it is any enterprises starting is just like a human effort in which different resources are employed to attain a certain or new objective or goal. Successful results in business depend largely upon the ability of the entrepreneurs or the starter of the new business. Okay, successful of the business, it's totally depend upon the ability of the entrepreneur. It is also called the owner of the business or the starter of the business to anticipate problem, how he taken the all the problems and solve them with the minimum cost, and how effectively and efficiently he solve all the problem with the minimum cost. This is especially true of the modern business world where competition is very tough and risks are the high. It is especially true because in the modern business there are many competition, and with the minimum revenue, minimum profit, and the highest risk and the highest very tough time to attain any objective for the business enterprises. Some of the problems which business firms encounter are of a basic nature. There are the some problem which is related to the basic nature. Before starting a business, what we have to see, what are the different factors, which kind of machines which we have to adopt, different technologies, available resources, finances, taxes. These all are the basic problem which any business enterprises or entrepreneurs faces. Now, for example, to start a factory, plans must be made and implemented about such problem as the location of the business, possible number of customers, the kind and amount of equipment, the shop layout, purchasing and financial needs, and the hiring of the workers. Okay, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो हम कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. कैसी प्रॉब्लम होती है कि लोकेशन ऑफ द बिज़नेस, वेयर द बिज़नेस विल बी लोकेटेड, वो सिचुएशन, वो एरिया कहाँ पे वो बिज़नेस हमारा एलोकेट होगा, द पॉसिबल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, कि कितना हम कस्टमर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने हमारे कस्टमर्स बनेंगे, द काइंड एंड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, कितने कितने टाइप के कितने अमाउंट में हमारे जो सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं कितने इक्विपमेंट होंगे, एंड दी शॉप लेआउट, शॉप का कैसा लेआउट होगा, वो उसका आउटर कैसा होगा, कैसे हम लोग प्रॉपरली सब कुछ मैनेज करेंगे, क्या चीज़ कहाँ पे होगी, परचेजिंग एंड दी फाइनेंसिंग नीड्स, कि फाइनेंस कहाँ से हम लोग हायर करेंगे, कहाँ से हम लोग बोरो करेंगे. कि बिफोर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, देखिए मेन इम्पॉर्टेंट इज़ फाइनेंस. Without finance, we cannot do anything. And the hiring of the workers who are engaging in the activities to produce the commodity, from where we hire those workers. These problems become more complex in a big business. कोई भी जो large scale के business होते हैं उसमें these kinds of problems occurs करती हैं. However, some of the basic factors which must be considered by anybody who is to start the business are as follows. कि जो basic factors हैं जो किसी भी businessman को क्या उसको allocate करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ऐसे problems और factors आ सकते हैं before starting a business. First one is selection of line of a business. The first thing to be decided by any entrepreneur of a new business is the nature and the type of the business to be undertaken.
देखिए फर्स्ट उसकी प्रॉब्लम क्या हो गई कि किस टाइप का बिजनेस होगा, कि वो कैसा स्टेशनरी का करेगा या ग्रॉसरी का करेगा या फैशन से रिलेटेड करेगा। तो पहला इसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि उसका नेचर क्या है, बिजनेस का किस टाइप का नेचर है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट से वो डील करेगा। ही विल ऑब्वियसली लाइक टू एंटर दैट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विच हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। देखिए वो ऐसे एरिया में एंटर करना पसंद करेगा, वैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहेगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो विद द मिनिमम कॉस्ट। The decision will be influenced by the customer requirement in the market and also the kind of technical knowledge and interest the entrepreneur has for producing a particular product. इसमें क्या होगा कि वो इसमें ये भी देखेगा कि कस्टमर की कैसी रिक्वायरमेंट है। बिफोर कस्टमर रिक्वायरमेंट एनी बिजनेस कांट बी स्टार्टेड, कि हम नहीं जानते कि जो हम बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमें कस्टमर मिल रहे हैं, वो कस्टमर किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कि उन्हें कैसे प्रोडक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कैसी काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज हमारे पास है, टेक्निकल प्रोडक्ट हमारे पास है, एंड दी सबसे पहला कि इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर का देख लिया कि उसे क्या है, फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है और मेरा क्या है, मेरा इंटरेस्ट किसी और प्रोडक्ट में था, मतलब बुक से रिलेटेड स्टार्ट करा था बिज़नेस। तो इसमें क्या हो सकता है, कॉन्ट्रेरी हो जाएगी कि हम फैशन तो देख लिए, हम इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट तो कस्टमर की देख लिए, बट अपना इंटरेस्ट हमारा कुछ और है, तो हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे जैसा हमको करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ द फर्म। साइज़ ऑफ द फर्म मीन्स कि देयर शुड बी बिजनेस विल बी इन लार्ज स्केल और शॉर्ट स्केल, लार्ज बिजनेस और स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस। तो किसी भी प्रोड्यूसर को, बिजनेस इंटरप्राइजेस को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि इस फर्म की साइज़ क्या होगी। Size of the firm or scale of its operation is another important decision to be taken at the start of the business. Some factors favor a large size whereas others tend to restrict the scale of operation. Okay, some factors favor, क्या कुछ ऐसे factors हैं वो favor करते हैं कि आप large scale size को ज़्यादा prefer करो, और कुछ क्या कहते हैं कि इसको restrict कर दो, नहीं ये large scale सही नहीं है। If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time and he can arrange the necessary capital for the business, he will start the operation at the large scale. अगर जो एंटरप्रेन्योर है और ओनर है वो ये देख रहा है कि इस जो भी डिमांड है, वो लार्ज स्केल का जो भी प्रोडक्ट है, वो देख रहा है कि फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी और उसके पास कैपिटल इतना है। कैपिटल मीन्स होता है कि जो मनी वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। अगर उसके पास दोनों चीज़ है, वो पहले डिमांड भी देख रहा है एज वेल एज़ वो कैपिटल भी देख रहा है कि अगर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल है, then he or she will prefer a large scale business or large business. If the market conditions are uncertain and risk are high, a small business would be better choice. अगर क्या है मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, then the businessman will prefer the small scale business. Third is choice of form of ownership, कि जो ओनरशिप है, जो बिज़नेस स्टार्ट होगा वो किस टाइप का ओनरशिप में होगा, कि वो सिंगल कोई स्टार्ट करेगा या पार्टनरशिप में करेगा या तो और उसके ब्रॉड लेवल पे जाएगा। तो थर्ड क्या हो गया कि इसका वो ये भी देखेगा कि ओनरशिप उसकी क्या है। विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन नेक्स्ट chapter we will study about these different types, proprietorship, partnership or joint stock company. Sole proprietorship is simply any single producer will start a company. Partnership means कि two or more than partner will merge and start a company, and the joint stock company they will prefer first to make a company and then transaction will be started.
ईच फॉर्म हैज़ इट्स ओन मेरिट एंड डिमेरिट, हर एक का क्या है, अपना ओन मेरिट भी है और डिमेरिट भी है. द चॉइस ऑफ द सुटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप विल डिपेंड ऑन द such factor as the line of business, capital requirement, liability of the owner, division of the profit, legal formalities, continuity of business, transferability of the interest and the so on. कि किस टाइप के ओनरशिप को कोई अडॉप्ट करेगा, तो वो बेसिकली इन सारे जो भी फैक्टर्स हैं कि बिज़नेस का लाइन क्या है, किस टाइप के उसके पास ओनर है, लाइबिलिटी उसकी कितनी है, या वो प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट उसको मिलेगा वो कैसे डिवीज़न करेगा, कितना प्रॉफिट किसको देगा, और भी इंटरेस्ट जो होगा, जो भी इंटरेस्ट पे करने का होगा उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा. तो बेसिकली ऑल दीज फैक्टर्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है कि ओनरशिप कैसी होगी. वो कोई सिंगल होगा, कोई उसका ओनर या पार्टनरशिप में होगा, और इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सो ऑन. Location of the business enterprises. An important factor to be considered at the start of the business is the place where the enterprises will be located. ठीक है. फोर्थ इसका क्या फैक्टर हो गया कि where will be the any business enterprises will locate, कहाँ पे वो business हमारा होगा. Any mistake in this regard can result in the high cost of production. अगर ये डिसाइड करने में अगर कुछ मिस्टेक हो गई, आप समझ लीजिए कि वहाँ पे किसी भी बिजनेसमैन को हाईएस्ट कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कोई ऐसी जगह पे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करता है, अपने बिज़नेस इंटरप्राइजेस को, जहाँ पे उसको क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर फैसिलिटी है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, बैंकिंग की फैसिलिटी, तो उसका क्या होगा, कॉस्ट मिनिमम होगा. बिकॉज ऑफ कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा. इन केस अगर वो एकदम बैकवर्ड रीजन में अगर ओपन करता है अपना बिज़नेस, तो वहाँ पे उसको ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अकर करेगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इनकर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं होगी, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगी. तो अल्टीमेटली it will increase the cost of the production. So it is the most important for any business enterprises to locate the business enterprises where it will located. Inconvenience in getting right of kind of production inputs or serving the customer in the best possible way. Availability of the raw material and labor, power supply, services like banking, transportation, communication, warehousing, etc. are the important while making a choice of location. See, वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि ये सारी की अभी वो एकदम बैकवर्ड रीजन में, तो वहाँ से वो कस्टमर से डील नहीं कर सकता, वो कस्टमर का नहीं देख सकता कि उसकी चॉइस क्या है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उन्हें और क्या फ़ीचर्स चाहिए. तो उसका डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो सकता है किसी भी होल सेलर रिटेलर से. देन इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. So before starting a business, location of the business enterprises is most important for any businessman or entrepreneur. Fifth is financing the proposition. Financing is concerned with the providing the necessary capital for starting as well as continuing the proposed business. ठीक है. फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंस मीन्स मनी से रिलेटेड क्या ही बहुत नेसेसरी कैपिटल है कि अगर बिज़नेस को स्टार्ट करना है, बिफोर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस और एनी एंटरप्रेन्योर शुड हैव अवेलेबिलिटी ऑफ द बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल. उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होना ही चाहिए. ऐसा नहीं कि वो आज कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद, एक महीने बाद उसके पास कुछ कैपिटल ही नहीं है. नहीं, उसके पास एक रिक्वायरमेंट और एक अवेलेबिलिटी कैपिटल की होनी चाहिए. और इन फ्यूचर अगर उसको उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए भी मच अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज़ टू बी सेव्ड इन एनी वेयर, कि उसके पास एक उस बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ फाइनेंस होने चाहिए. कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड असेट. ठीक है, कैपिटल क्यों ज़रूरत होगी किसी को, वो इन्वेस्टमेंट करने का क्यों चाहेगा, मनी की इसको ज़रूरत क्यों होगी, कि वो जो भी इसके फिक्स्ड असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स मीन्स जो भी इसके लैंड है, उसकी जो बिल्डिंग है, जो मशीनरी है, इक्विपमेंट, एंड इन करेंट असेट. देखिए, दीज ऑल आर द फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट मीन्स कि दोज असेट विच हैव द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनकी
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है, वो मोर देन 1 ईयर होते हैं। तो ये सारे क्या है, बिल्डिंग हो गया, आपका लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, दीज आर दी फिक्स्ड एसेट एंड द करेंट एसेट्स इज आर दी रॉ मटेरियल्स, बुक, डेट, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। मीन्स कि सिंपली ये डेली एक्टिविटीज़ में आता है कि आज ख़त्म हो गया तो ये इसकी जो टाइम पीरियड होता है इट इज़ द लेस देन, ये रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया या इसको डेट की कमी हो गई, डेट मीन्स कि लोन जो वो लेता है, या जो गुड्स हैं फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है वो उसके बाद ख़त्म हो गया, तो ये सब उसके डेली एक्टिविटीज़ में आ गया। दीज ऑल आर दी करेंट एसेट, टाइम पीरियड इज़ लेस देन 1 ईयर एक्सेट्रा। कैपिटल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, कैपिटल उसकी ज़रूरत क्यों होगी इसको, कि जो भी इसके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, कि वेजेस देना है, सैलरीज देना है, रॉ मटेरियल ख़रीदना है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सारे के लिए भी उसको कैपिटल की ज़रूरत होगी। प्रॉपर फाइनेंसिंग प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन, कि प्रॉपर फाइनेंसिंग की जो उसकी प्लानिंग है वो उसको करना पड़ेगा फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल। फर्स्ट की फॉर द capital requirement, second is source from which capital will be raised, what are the different source from where capital of the any business enterprises will be raised, and the third one is the best use of utilizing the capital in the firm, कि what are the different ways from which we any business enterprises or entrepreneur utilize the capital which is held in the firm. Sixth is physical facility. Availability of the physical facility including machines and equipment, building and supporting services is a very important factor to be considered at the start of the बिजनेस। ठीक है, सारे फिज़िकल फैसिलिटी वही कि सारे इसके इक्विपमेंट, बिल्डिंग, जो भी सारे इसकी फ़िज़िकल मीन्स जिससे वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है। द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्म फंड एंड द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। दीज जो इससे रिलेटेड डिसीज़न है वो उसका किस पे डिपेंड करेगा, कि बिज़नेस का नेचर कैसा है, साइज़ कैसा है, फ़ंड की अवेलेबिलिटी कितनी है, और प्रोसेस, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा, अगर इससे डिसाइड कर लेगा तो उसी के टाइप के वो क्या करेगा, फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ को वो रिक्वायर और अवेल करेगा। नेक्स्ट इज़ प्लान्ट आउटपुट। प्लान्ट, आई थिंक इट इज़ प्लान आउटपुट। Once the requirement of physical facility has been determined, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of these facility. ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ही एक बार फिज़िकल फैसिलिटी हो गई तो उसके नेक्स्ट वो क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर एक प्लान को ले आउट करेगा कि कैसे वो उस बिज़नेस को स्टार्ट करेगा। सारी फैसिलिटी हो गई कि साइज़ क्या होगा, फ़िज़िकल फैसिलिटी हो गई, उसका फाइनेंस हो गया, असेट कैसे होंगे, ये सारे वो डिसाइड करने के बाद उसको क्या करेगा, प्लान, कि उसको कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे इन फ्यूचर। लेआउट मीन्स द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। एक लेआउट का सिंपली मीन्स होता है कि अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट विच इज़ नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट एंड committed workforce. Competent and committed workforce, simply every enterprises needs competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into desired output. कि किसी भी बिजनेसमैन को ऐसे वर्कर चाहिए जो क्या हो, एकदम कॉम्पिटेंट हो, एकदम अवेल हो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हों, या उनमें प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। इन वन की सिंपली वो क्या हो कि कमिटेड हो, अगर वो कोई काम कर रहे हो तो उसमें वो बेस्ट हो, कि वो प्रॉपरली उन जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी उसके पास रॉ मटेरियल्स हैं, उनको ऐसे प्रॉपर यूटिलाइज़ करे, प्रॉपर फंक्शनिंग करे कि एक डिज़ायर्ड आउटपुट क्या हो, एक प्रोड्यूस हो जाए। तो इट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन the workers how he or she manipulate that product to get the desired product, कि ये पूरा डिपेंड करता है किसी भी वर्कर पे कि वो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना वो बेटर यूटिलाइज़ कर रहा है
उन रिसोर्सेज को जो उसके पास अवेलेबल हैं और उन इनपुट्स को वो प्रोसेस के थ्रू डिज़ायर्ड और बेस्ट आउटपुट को वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए ऐसे जो वर्कर है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंस नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, ही मस्ट आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एंड मैनेजरियल स्टाफ। सिंस नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर मीन्स कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इतना कैपेबल नहीं है कि वो हर एक एक्टिविटी को खुद करे, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए कि स्किल्ड, सिंपली मीन्स कि स्किल्ड वर्कर उसको चाहिए कि वो प्रॉपरली उन वर्क को अच्छे से फंक्शंस कर पाए और वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन वर्कर्स का स्किल्ड है और कौन वर्कर अनस्किल्ड है, किसके पास ट्रेंड है, कौन वो ट्रेनिंग लिया है और किसके पास ट्रेनिंग नहीं है, एंड दी मैनेजरियल स्टाफ। तो ये डिपेंड पूरा एंटरप्रेन्योर पे करता है कि वो आइडेंटिफाई कर ले कि स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एज वेल एज दी मैनेजरियल स्टाफ, जो स्टाफ हैं जो वर्क कर रहे हैं। प्लान्स शुड बी ऑल्सो मेड अबाउट हाउ द एम्प्लॉयज़ विल बी ट्रेंड एंड मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, प्लान इसके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को क्या करें, कि कैसे वो जो सारे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम क्या करें, ट्रेंड करें और उसके बाद उनको मोटिवेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको मोटिवेट करना कि आप यू कैन डू बेटर, आप अच्छे से करिए। तो जब वो मोटिवेटेड रहेंगे तो क्या होगा, परफॉर्मेंस भी बेस्ट मिलेगी। तो कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स मीन्स कि वर्कर शुड बी, it is must to have a best and skilled worker to perform any manufacturing activity. Next is tax planning. Tax planning has become necessary these days because there are number of tax laws in the country and they influence almost every aspect of the functioning of the modern business. ठीक है, टैक्स प्लानिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंट्री में क्या है, अब बस only one tax law is not applicable, there are different type of tax laws are applicable. So it is mandatory for the entrepreneur and the workers to know much more about the all the tax laws which is applicable. The founder of the business has to consider in advance the tax liability under various tax laws. तो जो भी फाउंडर है बिज़नेस का उसको क्या कि सारे एडवांस में ही सारी टैक्स की लाइबिलिटी, टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स के डिफरेंट लॉज क्या हैं एंड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस डिसीजन और व्हाट विल हाउ इट इज़ इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन, बिजनेस के डिसीजन पे वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि जब भी वो प्रोडक्शन करेगा हर एक स्टेज पे उसको एज अ जीएसटी और डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, दीज ऑल आर द टैक्स विच दी एनी इंटरप्राइजेज हैज़ टू पे टू द गवर्नमेंट। तो क्या करेगा वो, कैसे पे करेगा, इसकी सारी लॉज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेज के पास या एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। Launching the enterprises. After the decision relating to the above mentioned factors have been taken, the entrepreneur can go ahead with the actual launching of the enterprises. Okay? अगर ये सारे उसके जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स थे उसने उसको डिसाइड कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका कि अपने इंटरप्राइजेस को लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना इन द मार्केट, विच वुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज, फुलफिलिंग नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वो अपने रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज़ करेगा, जो भी लीगल गवर्नमेंट के जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करेगा, starting the production process, producing any commodity he will started and initiating the sales promotion campaign। और क्या करेगा, सेल्स का प्रमोशन के लिए वो कैंपेन करेगा। कैंपेन मीन्स एडवर्टाइजिंग करेगा, एडवर्टीज़मेंट करेगा, होर्डिंग्स लगाएगा रोड पे, जैसे लोग क्या हो उससे ज़्यादा अवेयर हो, एडवर्टीज़मेंट आएगा। तो ये दीज ऑल आर दी सेल्स प्रमोशन। अब यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट कम ऑन दी टीवी की दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो आफ्टर दैट प्रोड्यूसिंग एनी कमोडिटी, the next step for the any business enterprises entrepreneur for the sales promotion. It is all about the first chapter and next class we will start the chapter 2.